Good morning, students. Welcome to the online class of School of Open Learning. Myself, Guneet Kaur, and I'll be taking your company law. So far, we have covered 9 chapters of the company law. In the last class, we talked about shares and shareholders meeting. Today we are going to start a new chapter, chapter number 10, which is accounts and audit. तो आज हम start करते हैं एक new chapter which is accounts and audit. In this chapter, we're going to talk about what are books of accounts, how to file online documents, who is an auditor, appointment and rotation of an auditor, auditor's report, secretarial audit. So students, for today's class we'll be talking about all these topics. So हम start करते हैं with our first topic, that is books of account. Books of accounts क्या होती है? Section 2, subsection 13 of the Companies Act 2013 defines books of account. It includes records maintained in respect of all sums of money received and expended and matters in respect of which receipts and expenditure takes place, all sale and purchase of goods and services by the company, the assets and liabilities of the company, the items of cost as may be prescribed under section 148 in case a company which belongs to any class of company specified. So students, basically books of account जो एक हम normal एक कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट है, जस्ट लाइक दैट, कुछ न्यू नहीं है. एक बुक बनाते हो आप, उसमें अपनी सारी अकाउंट डिटेल्स मेंशन करते हो, कितना पैसा आपके पास रिसीव हुआ, हाउ मच मनी यू रिसीव, ठीक है, क्या आपने सेल करी, क्या आपने परचेज करी, हाउ मच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अ कंपनी हैव, ठीक है. तो इन सब के बारे में डिटेल कि कितनी सेल परचेज हुई, कितने एसेट्स है कंपनी के पास, कितनी लाइबिलिटीज है, हाउ मच मनी इनफ्लो, हाउ मच मनी आउटफ्लो, ये सारी डिटेल इज मेंशन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. There are certain obligations of company to maintain books of account. तो books of account के regarding कुछ obligations हैं, कब we have to maintain it, या which companies are required to keep it. So every company shall prepare and keeps books of account and other relevant books and paper and financial statements for every financial year. तो books of account है वो every company को prepare करना है and अपने पास रखना है. Books of account shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. जैसे हम अपनी double entry system के बेस पर accrual बेस पर accounting करते हैं, just like that जो आप अपने books of account prepare करोगे वो भी इसी बेस पर accrual basis पर ही prepare होंगे. Now the books of accounts shall give a true and fair view. अब आप अपने accounts prepare कर रहे हो, it should give a very true and fair view. आप accounts बना रहे हो तो आप expect करते हो ना कि they give true picture of your company, ठीक है, कुछ भी false facts नहीं होने चाहिए, कोई hidden information नहीं होनी चाहिए. So your accounts should be very true and fair. Next, it should explain the transactions effected both at the registered office and its branches. So, अगर जैसे एक head office है, उसकी branch है, तो इन दोनों के बीच में अगर transactions हैं तो वो clearly explain करे. ऐसा नहीं है कि अगर company एक ही है but उसके पास एक head office में branch है, एक branch उसकी कह लो सब्सिडरी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो अपने जब भी ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को अपने गुड सप्लाई करे तो उसके रिगार्डिंग कुछ एंट्री ना हो बुक्स ऑफ अकाउंट में. प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए अगर आप अपनी ब्रांच के साथ भी डीलिंग कर रहे हो. So company can keep books of accounts in electronic mode in any manner. तो आप अपने books of accounts electronic mode में भी रख सकते हो. Then there are place of keeping books of accounts. So such books of account or other relevant papers shall be kept in the registered office of the company. जो आपकी books of accounts है वो company के registered office में होनी चाहिए. However, all or any of the books of account for sale and other relevant papers may be kept at such other place in India as the board of directors may decide. So रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है. अगर कोई रेलेवेंट पेपर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर रखना है.
नॉट ऑल योर बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहीं और प्लेस करना चाहते हैं सो दे कैन कीप इट. Board of directors decide to keep their books of account documents at some other place, then they shall within 7 days thereof file with the registrar a notice in writing giving the full address of that other place. So अगर कंपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं और रख रही है तो उनको 7 days में इन्फॉर्म करना है विद द रजिस्ट्रार, उनको नोटिस देना है राइटिंग में दैट they are changing the address या they are keeping the books of account in this place. तो पूरा address mention होना चाहिए. Where a company has a branch office within India or outside India, it shall be deemed to have complied with the above provisions. अगर किसी कंपनी की ब्रांच इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया तो जो भी प्रोविजंस हैं they have to follow. Proper books of accounts relating to the transactions at the branch office are kept at that office. So proper books of accounts जो होनी चाहिए वो कंपनी के ब्रांच से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो होनी चाहिए मेंशन. Proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at its registered office. तो जो ब्रांच है उसको भी अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और पीरियोडिकली अब जो भी समराइज रिटर्न्स हैं, जो भी समराइज रिजल्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो ब्रांच सेंड करेगी कंपनी को हेड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में. So this was all about books of accounts students. So books of accounts क्या होते हैं? हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक डिटेल होती है कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं, कंपनी ने क्या सेल ट्रांजैक्शंस करी, कितनी परचेज ट्रांजैक्शंस करी. सो इन सब की डिटेल वी कीप इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट. और बुक्स ऑफ अकाउंट की हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So financial statements as per section 2 subsection 40 of the Companies Act 2013, financial statements में क्या क्या आता है? देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट आती है जो हम प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. P&L अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर NPO है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे बैलेंस शीट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. एक इक्विटी स्टेटमेंट भी बनती है कि इक्विटी में कितने चेंजेस आए, नोट्स टू अकाउंट इफ रेलेवेंट. तो ये 5 थिंग्स इंक्लूड आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम इनको ही बोलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स का क्या मतलब होता है? कंपनी की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, अगर NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स. हम क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, कितने लॉसेस हैं, कंपनी कैसे रन हो रही है, ट्रू एंड फेयर व्यू. तो यही पर्पस होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का. नेक्स्ट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So section 129 subsection 3 of the act provides that where a company has one or more subsidiary or associate company, it shall in addition to the financial statement prepare a consolidated financial statement. Okay, lay the consolidated financial statement before the AGM of the company along with laying financial statement. The company shall also attach along with its financial statement a separate statement containing the saline features of the financial statement of its subsidiary. So basically students, अभी तक हमने पढ़ा कि financial statements क्या होते हैं. Now अब हम डिस्कस करेंगे consolidated financial statement क्या होते हैं. So basically जब एक कंपनी की 1 और more than 1 subsidiaries हैं, जैसे आपके पास एक बड़ी कंपनी है, आपकी 3-4 subsidiaries हैं और या associate companies हैं, तो in that case आप एक consolidated financial statement बनाओगे जिसमें total result आपकी कंपनी का प्लस योर subsidiary का भी include होगा. So इसमें हम क्या करते हैं, lay the consolidated financial statement also before the AGM. जो कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उससे पहले आप प्रिपेयर करते हो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट
along with its financial statements. So आप अपनी कंपनी की जो आपका मेन हेड ऑफिस है उसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ही बनाओगे, साथ में एक एनुअल जनरल मीटिंग से पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करोगे. सो आपको अटैच भी करनी है अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपनी जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आप अटैच करोगे. तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अपनी सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अटैच करनी है. सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम बनाते हैं जब कंपनी has one or more than one subsidiary or associate company. Now, next topic is provision for reopening or revision of accounts and financial statements. The Companies Act has provision for forcible reopening by a court or tribunal of financial statements in certain specific circumstances. Revision by force is envisaged through an application by a statutory body to court or tribunal on the grounds that accounts have been practiced fraudulent manner. So basically अगर आपने एक बार अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स बना लिए तो क्या आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, रीओपन कर सकते हो? यस, कर सकते हैं हम अकाउंट्स रीओपन जब हमें ट्रिब्यूनल बाय कोर्ट ऑर्डर हो कि आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो फ्रॉडुलेंट हैं, वो सही तरीके से नहीं बने. जब कोर्ट आपको ऑर्डर्स देता है ना, देन यू कैन यस रिवाइज योर फाइनेंशियल statements. Availability of financial statements. Every listed company needs to place its financial statements including consolidated financial statements on their website. So basically आपको किसी भी कंपनी की financial statements चेक करनी होंगी तो आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो. Now, what are the statutory registers and record? एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने ही करने हैं. ऑल्सो अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टैट्यूटरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड. तो कंपनी को कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी मेंटेन करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ. कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं? जैसे कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन. जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर. जब कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट करा टू रेज पब्लिक कैपिटल तो उसके रिकॉर्ड होना चाहिए. शेयर्स इन सिक्योरिटीज बॉट बैक, जितनी वापस से खरीदे शेयर्स. रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन कराने के चार्जेस. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के पास कितने मेंबर्स हैं, कितने डिबेंचर होल्डर हैं, उनका एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए. इंडेक्स ऑफ नेम्स, जो कंपनी का नेम है उसका एक इंडेक्स. जो बेनिफिशियल ओनर है उनका रिकॉर्ड. कोई फॉरेन रजिस्टर है. देन कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न. मिनट्स बुक, कंपनी की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स की डॉक्यूमेंट होना चाहिए. एक रजिस्टर होगा डायरेक्टर्स इन KMPs, की मैनेजरल पर्सन, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, CS. इंटर कॉर्पोरेट लोन्स अगर लेंगे तो उनके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन. कंपनी के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स. कोई कॉन्ट्रैक्ट्स करें इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद MD, WTD. सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपनी को मेंटेन करने हैं along with the books of accounts. Filing of financial statement with the registrar. So copy of financial statements along with the documents is required to be attached with the ROC within 30 days from the date of AGM. So basically आपको अपने financial statements जो हैं अपनी annual general meeting के 30 days में आपको file करने हैं with the registrar of the companies. जैसे आपने supposedly आज AGM है तो within 30 days till next month आपको file करना होगा अपने financial statements with the registrar of the companies. The next topic is annual return. Section 192 of the Companies Act contain provisions regarding annual return. So company को every company shall prepare an annual return in the prescribed form containing the particulars as they stood on the close of financial year
सो हर कंपनी को अपनी एक एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करनी है। तो क्या क्या होना चाहिए उस एनुअल रिटर्न में, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, हाउ मच लोन अ कंपनी हैव, members, debenture holders की information, promoters, directors, remuneration and any other matter, ये सारी important particulars हैं, points हैं जो annual return में mention होनी चाहिए। Authentication of annual return. So annual return must be signed by a director and the company secretary, or where there is no company secretary, by a company secretary in practice. So basically आपने जो अपनी annual return बनाई, annual return must be signed by the director and the company secretary. तो जो कंपनी का CS है उसको और कंपनी के डायरेक्टर को एनुअल रिटर्न साइन करनी है। Where there is no company secretary, जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, they also can sign the annual return. अब in case of OPC, one person company में annual return shall be signed by the company secretary, where there is no company secretary, by the director of the company. And certification of annual return. The annual return filed by a listed company or a company having paid up capital of 10 crore or more, or turnover of 50 crore or more, shall be certified by a company secretary in practice in the prescribed form. So basically, जब आपकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, देन आपकी एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई CS करेगा कंपनी सेक्रेटरी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, दैट जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है एनुअल रिटर्न में वो करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनुअल रिटर्न, आप एक बार गो थ्रू करना। So next topic that I am starting is online filing of documents, e-filing. The Companies Act 2006 introduced provisions for e-filing and payment of fees electronically by the companies. Accordingly, microfilms, facsimile copies of documents, computer printouts, and documents in computer media are admissible as documents and evidence. The Act provides that such applications, balance sheet, prospectus, declaration, MOA, AOA, any other documents may be required to filed or delivered under this Act. So basically, simple meaning, Companies Act जो 2006 में amend हुआ, उसमें provision आया कि e-filing और e-payment of fees हम कर सकते हैं। Annual मतलब e-file कर सकते हैं, online documents file कर सकते हो, फाइलिंग रिटर्न कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग का स्कोप क्या है? द ई फाइलिंग फैसिलिटी इंक्लूड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। सो बेसिकली ई फाइलिंग में आप कंपनी को ऑनलाइन ई फाइलिंग के थ्रू आप ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है। फाइलिंग एनुअल एंड स्टैट्यूटरी रिटर्न्स, जो आपको रिटर्न्स भरनी है वो भी ऑनलाइन भर सकते हो। कोई रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, दैट आल्सो आप ऑनलाइन कर सकते हो। नाउ देयर इज अ प्रोसेस। अब ई फाइलिंग का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले डाउनलोड अ ब्लैंक ई फॉर्म फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 पोर्टल। सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक पोर्टल है, उसमें जाकर एक ब्लैंक फॉर्म जिसको हम बोलते हैं MCA 21 डाउनलोड करना है। देन आपको इसको यूजिंग अ सॉफ्टवेयर फिलअप करना है, ठीक है। ऑप्शनली कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिक प्री स्क्रूटनी इन विच सिस्टम विल वेरीफाई, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होंगे। डिजिटली साइन द फॉर्म, आप डिजिटल सिग्नेचर्स कर सकते हो। देन यू कैन सबमिट द फॉर्म, और कोई भी पेमेंट है मेक दैट नेसेसरी पेमेंट। देन जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पर, वो प्रोसेस होते हैं बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है। दे चेक करते हैं कि आपने जो पेमेंट करी वो आ गई या नहीं आई। द ट्रांजैक्शन इज डीम्ड एंड कंप्लीटेड ओनली आफ्टर क्लियरेंस ऑफ पेमेंट चेक करते हैं। E-stamping also been introduced in the Ministry of Corporate Affairs 21. This has enabled the stakeholders to make payment of stamp duty electronically. So
जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी ऑनलाइन है, बिकॉज जब फॉर्म ऑनलाइन आप भर रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी भी ऑनलाइन लग जाएगी. The forms may be filled online or offline after downloading. MCA recommends that the forms be filed offline and submitted on the portal. So both options हैं, आप online भी कर सकते हो और offline भी कर सकते हो. Now this is XBRL filing. What is XBRL? Extensible Business Reporting Language. Extensible Business Reporting Language is a standardized language for communication in electronic form to express, report or file information. The central government has framed the company's filing of documents and forms in extensible business reporting language. So basically, government ने प्रपोज करा है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हो तो वो XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में मेंशन होना चाहिए. तो ये किसके लिए मैंडेटरी है कि उनको रजिस्टर इन XBRL में ही करना है? जो कंपनीज हैं उनका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर है, company listed है with stock exchange in India, they have to file their documents in XBRL filing, मतलब extensible business reporting language. ये एक standardized language है for communication in electronic form to express, report or file financial information. अब हम start कर रहे हैं new topic, that is auditor, appointment and rotation. So auditor कौन होता है? So Companies Act section 141 subsection 1, a person shall be eligible for appointment as an auditor of the company only if he is a CA within the meaning of CA Act and holds a valid certificate of practice. A firm also consider to appointment by its firm name whereof majority of partners practicing in India are qualified for appointment as auditor of a company. Where a firm is LLP, partnership, limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act on behalf of the firm. So basically students, auditor कौन बन सकता है? First, he should be a CA और valid practice होना चाहिए, certificate होना चाहिए practice का, तो वो auditor appoint हो सकते हैं कंपनी में. कौन होता है? जो वेरिफिकेशन करता है आपके अकाउंट्स की, चेक करता है कि अकाउंट्स ठीक है, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है. सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. कौन ऑडिटर नहीं हो सकता? अ बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP के अलावा कोई भी कंपनी है वो नहीं हो सकती. कोई ऑफिसर या कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय है वो ऑडिटर नहीं बन सकता. कोई कंपनी का पार्टनर है तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता. कोई किसी पर्सन का रिलेटिव है, दैट पर्सन कैन आल्सो नॉट बी एन ऑडिटर. ठीक है, तो ये सारी डिटेल है कि कौन डिस्क्वालिफिकेशन है ऑफ ऑडिटर, कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता. जो बन सकता है वो आपको बता दिया कि CA होना चाहिए, CA इन प्रैक्टिस होना चाहिए, दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. Appointment of auditors. So first auditor of a company other than the government company shall be appointed by the board of directors within 30 days. So जो कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स within 30 days from the date of registration of the company. So within 30 days आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराकर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है. एंड नेक्स्ट उसके बाद कौन से ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर. एवरी कंपनी shall at the first AGM appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of the 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. So basically subsequent auditors आप अपनी कंपनी के first AGM में अपॉइंट कर सकते हो annual general meeting में. रीअपॉइंटमेंट भी के लिए भी प्रोविजंस हैं कि आप किसी ऑडिटर को रीअपॉइंट भी कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड कि उसको डिस्क्वालीफाई ना करा गया हो, किसी ने कहा ना गया होगा कि उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं हम, दिस पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर.
Appointment of auditor in government company. So in the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government or government, so partly by the central and state or by one or more state government, the Comptroller and Auditor General of India in respect of a financial year appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of the companies under this act. So basically students, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन होता है? गवर्नमेंट कंपनी में जो हमारी CAG, आपने सुना होगा, इफ यू हैव हर्ड, जहाँ पे माता सुंदरी कॉलेज है इन CP कनॉट प्लेस के पास, तो वहाँ पर देयर इज अ ऑफिस, CAG का ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का. सो गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर्स होते हैं उनके ऑडिटर CAG अपॉइंट करता है. ठीक है, CAG का ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स वो अपॉइंट करते हैं. ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो कंपनी का जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, सो विद इन 180 days वो अपॉइंट करेंगे. The first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of registrar of the company. So जो first director है वो आपको within 60 days कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंट करना है. So अगर कोई कैजुअल वैकेंसी भी है देन ऑल्सो वो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फिल कर सकती है. अगर ऑडिटर की वैकेंसी हो जाती है, वो छोड़ देते हैं जॉब, एंड कोई अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है देन ऑल्सो उसकी ड्यूटी भी. गवर्नमेंट कंपनी में हमेशा याद रखना ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट रिपोर्ट. सो कंपनी एक्ट कहता है कि ऑडिटर्स एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे on the basis of the financial statements. वो चेक करेंगे कि financial statements कितनी fair हैं, true हैं, कितनी properly prepared हैं, कोई इसमें misstatements तो नहीं है. तो वो report prepare करेंगे auditors, एक audit report. सो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होगा? सो उसके अंदर सारी डिटेल होंगी कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. ठीक है, कंपनी के जो बैलेंस शीट हैं और कंपनी की जो P&L है वो प्रॉपर एग्री कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से, और प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है. जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, राइट. और जो कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, जो ऑपरेशंस है कंपनी के, वो सब प्रॉपर हैं. अगर कोई where any of the matters required to be included in the audit report under this section is answered in the negative or with the qualification that the report shall state the reason. अगर कोई चीज ऑडिट रिपोर्ट में आपको लग रहा है कि नेगेटिवली आंसर्ड है तो प्रॉपर रीजंस होने चाहिए. ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट. सो ऑडिटर जो है वो साइन करेगा ऑडिट रिपोर्ट. The audit report and the qualification, observation or comments in the financial transaction of matters which have any adverse effect on the function of the company mentioned in the audit report shall be read before the company in general meeting and shall be opened to inspection by any member of the company. So audit report को auditor sign करेगा, and then अगर उनको लगता है कोई ऐसी transaction हुई है जो affect कर सकती है तो कंपनी की जो मीटिंग होगी उसके अंदर ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा. ही विल रीड द रिपोर्ट बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग, एंड सारे मेंबर्स के लिए ओपन है कि अगर उनको किसी भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग इंक्वायर करना है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं. So our last topic for this chapter, not for today's class, our last topic is
सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है उसका लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। ये क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस to check compliance with the provisions of various laws, regulations, procedures, maintenance of books, records by an independent professional to ensure that the company has complied with the legal and procedural requirements and follow the due process. So it's a part of a legal compliance reporting system. So secretarial audit हम तब करते हैं to check जो कंपनी है वो लीगल कंप्लायंस फॉलो कर रही है। इट मीन्स जो भी चीज़ें लॉ कहता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। सो दैट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। इट्स अ प्रोसेस to check compliance with the provisions of various laws and regulations, maintenance of books, records, etc. by an independent professional to ensure that the company has compiled with the legal and procedural requirements and also followed the due process. The secretarial audit is an effective tool for corporate compliance management. It helps to detect non-compliance. So basically, secretarial audit आपकी कंपनी के जो लीगल रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको चेक करने के लिए होता है कि कंपनी ने जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई करा है, फॉलो करा है, कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं है। Secretarial audit benefits क्या हैं? It assures that the shareholders that management affairs of the company are being, देखो secretarial audit कराते हो तो इससे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ट्रस्ट फैक्टर मिल जाता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो प्रॉपर हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं है, कंपनी सारे रूल्स फॉलो कर रही है। तो सेक्रेटोरियल ऑडिट से ना एक ट्रस्ट आ जाता है, एक प्रूफ हो जाता है। It can be effective for due diligence. So basically, to provide comfort to investors that the company has been conducted its affairs according to the laws. So basically यही है main reason कि secretarial audit क्या होता है, to make sure कि company जो है वो सारे legal provisions follow कर रही है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है। तो जो कंपनी के लीगल कंप्लायंस को चेक करने के लिए हम सेक्रेटोरियल ऑडिट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, I also want to start next chapter, that is dividend provisions. So before starting this chapter, I'm giving you all 10 minutes. आप अपने question and answer सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दो कि इस चैप्टर नंबर 10 के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं आपको, कोई चीज़ आप दोबारा समझना चाहते हो तो 10 मिनट्स आर आपके लिए, कोई डाउट्स हैं। फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 डिविडेंड प्रोविजंस। तो आपको अकाउंट्स एंड ऑडिट जो हमने आज की क्लास में 30 मिनट सेक्शन में जो कवर करा उसमें कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप बताइए। सेक्टोरियल ऑडिट मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमें चेक करना होता है दैट कंपनी इज फॉलोइंग द लीगल कंप्लायंस, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो कंपनी की लीगल कंप्लायंस को चेक करने के लिए वी डू सेक्रेटरियल ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टॉपिक इज़ नॉट इन योर बुक। आई थिंक आप चेक करो आपका एडिशन कहीं ओल्ड एडिशन तो नहीं है। अगर कोई बात नहीं, आई हैव शेयर्ड द लिंक, मैंने पब्लिश करा है लिंक इसी चैप्टर का, आप डाउनलोड करके यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, उस फाइल में से पढ़ लो। इन माई बुक ऑल्सो चैप्टर इज अकाउंट्स एंड ऑडिट, और यही चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड ऑडिट, आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 10 अकाउंट्स एंड ऑडिट। ओके, आपकी बुक में ऑडिट है तो आई थिंक प्रोबेबली जो आपके जो वो है हमारे एडिशंस हैं उसमें डिफर कर रहा होगा, ओल्ड एंड न्यू एडिशंस में डिफरेंट होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? जब आपकी सिर्फ आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई एसोसिएट कंपनी नहीं है, आपकी कंपनी की कोई और
आपके अंडर, आप समझते हो ना, एक होल्डिंग कंपनी होती है जो उसके अंडर एक सब्सिडियरी कंपनी होती है। तो जब आपके पास ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें आप एक होल्डिंग कंपनी हो, आपके अंडर एक सब्सिडियरी काम कर रही है, एक एसोसिएट कंपनी है, तब आपको एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी। वो क्या होती है, कैसे करते हो आप? उसमें कंसोलिडेट करते हो होल्डिंग के फाइनेंशियल्स और आपके सब्सिडियरी के फाइनेंशियल्स को ऐड कर कर नेट रिजल्ट प्रेजेंट करते हो कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, ओवरऑल कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं। तो ज़रूर तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। साथ के साथ आप कंपनी की जो सब्सिडरी है उनके भी फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करोगे। इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी बनानी है एंड कंसोलिडेटेड भी बनानी है। कब बनानी है? जब एक कंपनी के पास वन और मोर देन वन सब्सिडरीज हैं या एसोसिएट कंपनीज हैं। जो वीडियोस हैं आई थिंक इट विल टेक टाइम, इतनी जल्दी अपलोड नहीं होने वाली, टाइम लगेगा। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, मतलब मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में मैंने शेयर करे ही हैं सारे नोट्स। अब आपके आई थिंक इट्स योर 11th क्लास एंड 2 more क्लास लेफ्ट, 2 or 3 more क्लास लेफ्ट। तो लास्ट क्लास में आई विल डेफिनेटली शेयर नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इन योर लास्ट क्लास। LLP is लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। LLP क्या होती है? एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है, जितने उनके शेयर होल्डिंग होती है सिर्फ वो उतने अमाउंट के लिए लाइबल हैं। नो, दे कैन नॉट बी एन ऑडिटर। अगर कोई सीए है वो कंपनी के ओनर से रिलेटेड है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज फिर उसमें पर्सनल इंटरेस्ट के चांसेस होते हैं। तो देखोगे एक डिक्लेरेशन उनको साइन करनी होती है जब भी कोई किसी का सीए अपॉइंट होता है या ऑडिटर अपॉइंट होता है। दे हैव टू ऑलरेडी मेंशन, प्री रिटन उनको बताना होता है कि आप कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है, कोई आपका उनसे कोई और रिलेशन तो नहीं है। सो देन क्योंकि उसमें चांसेस हो सकते हैं ना, जब अगर डायरेक्टर के साथ आपका सीए जो है दे आर इन रिलेशन, देन चांसेस हो सकते हैं कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मिसयूज कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न आप पीरियोडिकली आप एक स्टेटमेंट फाइल करते हो, कंपनी के फाइनेंशियल्स की डिटेल मेंशन करते हो। एनुअल रिटर्न में आप कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके रिगार्डिंग भी मेंशन करते हो। तो सारी डिटेल हमने नोट्स में देखो एक प्रॉपर गो थ्रू करा था। एनुअल रिटर्न में क्या क्या इंक्लूड होता है देखो। एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एनुअल रिटर्न के पर्टिकुलर्स में मेंशन होना चाहिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, कौन प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, remuneration of directors and key manageable person, matters relating to certification of compliance. So basically annual return में आप कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन करोगे, कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्या रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस, सब कुछ। टर्नओवर होता है स्टूडेंट्स, कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। आपकी कंपनी एक साल में कितने की सेल करती है उसको हम टर्नओवर बोल सकते हैं। टर्नओवर बोल दो या रेवेन्यू बोल लो या सेल्स बोल दो, इट मीन्स द सेम। मिस हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 ये एक ऑनलाइन फॉर्म है। इसको हम फाइल करते हैं जब भी कंपनी की रिटर्न फाइल करनी होती है, तो ई फाइलिंग के लिए हम MCA 21 डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। हमें ई फाइलिंग करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, तो हम एक ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड करेंगे
फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उस ब्लैंक फॉर्म को डाउनलोड करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑनलाइन फिल भी कर सकते हो। फिर आपको डिजिटल साइन करना है, उसके लिए पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद ये सारी प्रोसेसिंग आरओसी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। वो देखते हैं कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपर फिल करा है, प्रॉपर फीस पे करी है। ई फाइलिंग तभी मानी जाती है जब उसकी नेसेसरी पेमेंट क्लियर हो जाती है। जब बैंक से पेमेंट क्लियर कर दी तो प्रूफ हो जाता है कि आपने प्रॉपर फाइलिंग करी है डॉक्यूमेंट्स की। सो दैट इज ई फाइलिंग। बुक्स ऑफ ऑडिट में बुक्स ऑफ ऑडिट, आई सॉरी आरिफ, आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा आप मेंशन करो, क्या पूछना चाह रहे हो? ओके, आपका 2020 में, सो इसलिए गो थ्रू सिलेबस 1 से एक बार प्लीज सिलेबस को गो थ्रू कर लो। उसमें देख लो कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। देखो, ऑडिटर को अपॉइंट हमेशा ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो पहले ऑडिटर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को बाद में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। टोटल 13 चैप्टर्स। What is AOA? Article of Association. Article of Association एक डॉक्यूमेंट होता है रिगार्डिंग द कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दो मेजर डॉक्यूमेंट हैं। मेन डॉक्यूमेंट होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के रूल, कंपनी के पर्पस क्या है, वो मेजर डॉक्यूमेंट हो गया, प्राइमरी। उसके बाद एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, दैट इज AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस MOA में, रूल्स एंड रेगुलेशंस AOA में। So students, I think I have resolved most of your queries. So let's jump to the next chapter, chapter number 11 start करते हैं। It's a very small chapter. We have 15 minutes class left. Let's try कि हम कितना maximum cover कर सकते हैं। So let's start with the next chapter, chapter number 11. Chapter number 11, dividend provisions. So dividend provisions, so इसके लिए important है हमें पता हो कि dividend क्या होता है। आई थिंक आपको पता है कि जब एक कंपनी में शेयर होल्डर्स को, जब वो इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करते हैं, तो मेंबर्स को रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? द टर्म डिविडेंड इज derived from the Latin word dividendum, which means that which is to be divided. Dividend is that part of profits of the company which is distributed among its shareholders. So dividend क्या होता है? जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जब कंपनी के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मेंबर्स में तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। Dividend implies two things: payment out of profits and actual release of some assets. Issue of bonus shares or right shares to the existing members is not considered as dividend. So students, अगर आप किसी members को bonus shares issue करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने dividend दिया। Dividend तभी माना जाएगा जब आप payment करोगे profits में से या एक्चुअल रिलीज ऑफ सम एसेट। कोई एसेट आपने रिलीज करा है तो उसके थ्रू जो मनी आई है उसको आप डिवाइड कर रहे हो मेंबर्स में, तो दैट इज डिविडेंड। अब क्या लीगल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू डिविडेंड? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टू बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो कंपनी को डिविडेंड कहाँ से देना है? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी of that year arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions of the Act, or profits of the company for any financial year or years after providing for depreciation as per the provisions of the Act. So basically आपको कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके में से ही अपना
डिविडेंड देना है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट है उसमें से आपको डिविडेंड देना है। और मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या अगर गवर्नमेंट ने ही इतना अलाउ करा है कि इतना डिविडेंड पे करना है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसमें आपको उतना डिविडेंड देना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। Before any dividend can be paid out of profits of any financial year, company is required to provide depreciation. तो dividend देने से पहले देखना है कि कंपनी depreciation चार्ज कर रही है या नहीं कर रही। Unrealized gain. In computing profit, any amount representing unrealized gain, notional gain or revaluation gain, any change in asset or liability due to measurement at fair value shall be excluded. डिविडेंड देने से पहले अगर कोई भी अनरियलाइज गेन है, जैसे आपने अनरियलाइज गेन हो सकता है रीवैल्यूएशन हुआ एसेट एंड लायबिलिटी का, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट होता है, तो हम रीवैल्यू करते हैं एसेट्स, उसमें जो गेन होता है रीवैल्यूएशन होने पर, तो उसका जो गेन है उसको एक्सक्लूड करेंगे डिविडेंड देने से पहले, हटाएंगे। Transfer of profit to reserves. A company may, before the declaration of dividend in any financial year, transfer such percentage of its profit for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company. So transfer of profits to reserve, company क्या करेगी, declaration of dividend देने से पहले जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी रिजर्व्स बनाने हैं, उसमें ट्रांसफर करने के बाद डिविडेंड देगी। जैसे अगर कंपनी के पास 5 लाख प्रॉफिट आया एंड उसको जर्नल रिजर्व में 3 लाख डालना है, तो कंपनी 5 में से 3 रिजर्व में डालने के बाद बैलेंस 2 लाख को डिवाइड करेगी एज अ डिविडेंड। Company can pay dividend out of its reserve funds created out of the undistributed profit of the company of the any previous financial year. देखो कंपनी अपने जो डिविडेंड है वो रिजर्व में से भी दे सकती है। अगर कुछ लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स, कुछ पहले सालों का रिजर्व फंड है उसमें से भी डिविडेंड दे सकती है। Then payment of dividend out of capital profits. So profit arising out of the sale or revaluation. So capital profit कौन सा profit होता है, जब हम कोई asset को sale करते हैं उससे जो हमें profit होता है उसको हम बोलते हैं capital profit। तो हम उसमें से भी dividend pay कर सकते हैं। Out of capital profit में से pay कर सकते हैं, out of general reserve से pay कर सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि कंपनी डिविडेंड तब देगी जब अपनी कंपनी डेप्रिसिएशन को चार्ज बैक कर लेगी, डेप्रिसिएशन को दिखा देगी इफेक्ट डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट में। देन कंपनी को जो भी रिजर्व में ट्रांसफर करना है अमाउंट, उसको ट्रांसफर करने के बाद बैलेंस अमाउंट में से डिविडेंड देगी। कोई अनरियलाइज गेन हुआ है उसको एक्सक्लूड करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। Next topic is revocation of declared dividend. So dividend declared with the approval of the shareholders creates a debt due to the shareholder. Generally, dividend declared cannot be revoked except with the approval of the shareholder. Of the intervening circumstances after the declaration, such as the outbreak of war, massive fire destroying the properties, hard taxes, where a dividend has been declared illegally or violating the requirement of the laws. So revocation, कब जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया उसको आप रिवोक करोगे, कैंसिल करोगे। किस सिचुएशन में, कंपनी ने अनाउंस तो कर दिया वो डिविडेंड देगी बट कैंसिल कर रही है कि अब नहीं देगी डिविडेंड। जब कोई कंट्री वॉर है, कंपनी में कंट्री में कोई वॉर चल रही है, कोई मैसिव फायर के वजह से कंपनी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, गवर्नमेंट ने हार्ड टैक्सेस इम्पोज कर दिए, तो ये अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस में रिवोकेशन ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है। डिविडेंड कैंसिल कर देते हैं देना, या जब डिक्लेयर होता है कि जो डिविडेंड है वो तब हम कैंसिल करेंगे देना जब लग रहा है कि जो कंपनी की एक्टिविटीज हैं वो इलीगल हैं, दे आर वायोलेटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड किनको मिलता है, कौन कौन एंटाइटल होता है।
A company can pay dividend only to the shareholders of the company. तो कौन किनको मिलता है? Equity shareholders को dividend मिलता है and preference shareholders को? Preference shareholders carry a preferential right as to dividend in accordance with the terms of the issue and other articles, and preference shareholders are paid dividend before the dividend paid to equity shareholders. So students, dividend किनको मिलता है? Equity shareholders को and preference shareholders को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा डिविडेंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स. Equity shares with differential rights. Where a company issues equity share with differential rights as to dividend, the term of issue of such shares will govern the right of each such class of holders as to receipt of dividend. So अगर equity shares जो होते हैं differential rights वाले issue करे जाते हैं, जैसे होता है ना कुछ टाइप के शेयर्स हैं जिन पे डिफरेंशियल राइट्स हैं, मतलब उनको डिविडेंड पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, कितना मिलेगा, ये डिफर कर सकता है. Payment of dividend in proportion to amount paid upon shares. The company may, if so authorized by its article, pay dividend in proportion to the amount paid upon each share. So ऐसा भी कंपनी कर सकती है कि जिसने ज़्यादा शेयर का पैसा पेड अप करा हुआ है, 1 लाख के शेयर्स हैं, 80,000 पे करा हुआ है अभी तक, तो उनको अकॉर्डिंगली डिविडेंड मिलेगा कि किसने कितना अमाउंट पे करा हुआ है, कितना अमाउंट पेड अप है जिसके शेयर्स पर, उसके अकॉर्डिंगली उनको डिविडेंड मिलेगा. Adjustment of calls and arrears against dividend payable. So अगर अभी कंपनी ने calls and arrears करे हैं, अपने calls के सारे पैसे नहीं दिए, तो उनको dividend कैसे मिलेगा, उसके regarding कुछ adjustments हैं. In the case of listed company, calls and arrears or any other sum due from a member in the capacity of a member may be adjusted against the dividend payable. तो कई केसेस में जैसे आपकी 10,000 का भी कॉल एंड एरियर है, आपने अभी पैसे नहीं दिए और आपको 12,000 का डिविडेंड है, तो आपकी कॉल एंड एरियर को हम माइनस करके आपको डिविडेंड पे कर सकते हैं. तो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो एडजस्ट हो सकता है आपकी कॉल एंड एरियर्स पर. डिविडेंड इन एबियंस. So this is a new topic. Dividend in abeyance क्या होता है? If a member authorizes the company in writing to pay the dividend to the transferee specified in the instrument of a transfer lodged with the company should act upon such authorization. However, in the case of shares which have not been transferred because the ownership thereof is in dispute, or where attachment orders have been passed by a court, dividend should be held in abeyance by transferring to the unpaid dividend account. So basically students, अगर एक मेंबर ने राइटिंग में ऑथराइज करा है कि जो डिविडेंड है वो आप इस पर्सन को मेरे बिहाफ पर ट्रांसफ़र कर दो, अगर वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड है, कोई इशू नहीं है, तो जो कंपनी है वो जो ऑथराइज पर्सन है उसको डिविडेंड देगी. बट अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है या अभी प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं आए ट्रांसफ़र करने के, कोई भी प्रॉब्लम है, कोर्ट से ऑर्डर्स नहीं आए हैं, सो इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड को एक नया अकाउंट बनाएगी अपने पास, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसमें वो मनी जो डिविडेंड है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड इन एबियंस, मींस डिविडेंड विच इज अनपेड, जो अभी पे नहीं करा, उसको ट्रांसफर कर देगी इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट. Now next topic is procedure for declaration of dividend. So I think this is the last topic for today's class because we'll do the remaining, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 more pages, जो भी बैलेंस हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे. फॉर टुडेज क्लास डिविडेंड का जो हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. क्या प्रोसीजर होता है डिविडेंड को डिक्लेयर करने का? नंबर 1, रिकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स के पास कोई पावर नहीं होती डिविडेंड डिक्लेयर करने की, उनको तो मिलता है डिविडेंड. तो जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी.
के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें मेंशन करेंगे किस रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा एंड कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, book closure date for dividend, date of AGM, bank with which account shall be opened, किस अकाउंट से डिविडेंड की पेमेंट होगी, कितना डिविडेंड मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा. So everything is decided by the board of directors. क्या है प्रोसीजर? अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर. अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सजेस्ट करा, डिक्लेयर करा, उसके रिगार्डिंग एक प्रपोजल जाएगा एजीएम में शेयर होल्डर्स के सामने कि इस साल आपको इतना डिविडेंड मिलेगा. तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्रूव करेंगे दैट वी आर ओके कि हमें इस रेट पर आप डिविडेंड दे दो. तो शेयर होल्डर्स के पास पावर है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है ना वो उसको लोअर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट कोई क्यों ही करेगा, किसी को डिविडेंड मिल रहा है तो दे हैव द पावर कि जो 10% रेट ऑफ डिविडेंड सेट करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उनके पास पावर है शेयर होल्डर्स को वो लो कर सकते हैं. अपना इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ डिविडेंड है उसको 10 से 8 कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते. दे डोंट हैव अ पावर टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर्ड बिकम्स डेट अगेंस्ट द कंपनी. देखो स्टूडेंट्स, कंपनी के लिए शेयर होल्डर को डिविडेंड देना एक डेट है, एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी है. कंपनी ने क्योंकि जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो ओनर है वो क्रेडिटर है कंपनी का, जस्ट लाइक दैट जो शेयर होल्डर्स है वो भी एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर है कंपनी के लिए. जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी वो कंपनी के लिए एक डेट बन जाता है जब तक वो उसको पे नहीं करेगी अपने शेयर होल्डर्स को. डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. सो स्टूडेंट्स, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनीज होती है ना जो साल में 2 बार भी डिविडेंड पे करती हैं, हाफ ईयरली, साल के 6 महीने बाद इस आधे साल का डिविडेंड को हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, dividend includes interim dividend. Interim dividend can be declared by the board of directors if they have authority to do so. So dividend में interim dividend भी included होगा. डिविडेंड को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा जिसके थ्रू पेमेंट होगी सारे शेयर होल्डर्स को. डिविडेंड बाय चेक भी दे सकते हैं, बैंक का चेक दे दो या बाय वारंट इशू कर दो. टाइम फ्रेम क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. तो आपने जब डिक्लेयर करा कि इतना डिविडेंड पे करना है एक मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो आपको विद इन 30 डेज डिविडेंड पे करना है. ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड. Where a dividend has been declared by a company but has not been paid within 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the expiry period transfer the total amount of dividend which remains unpaid to a special account. Unpaid dividend account. अगर कंपनी ने 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं करा by any chance, तो उसको 30 डेज के बाद विद इन 7 डेज जो अनपेड डिविडेंड अमाउंट है उसको एक नए अकाउंट बनाकर ट्रांसफर करना होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जिसमें कंपनी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी देगी क्योंकि उन्होंने 30 डेज में डिविडेंड नहीं दिया, लेट पेमेंट हो रही है, तो 12% पर एनम पर इंटरेस्ट भी मिलेगा शेयर होल्डर्स को. सो ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड. जो भी अनपेड डिविडेंड है जो अभी तक नहीं पे करा कंपनी ने, जिसके लिए उन्होंने अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाया, उसको एक कंपनी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देती है. When making a transfer to the fund, the company shall furnish to the authority appointed by the central government. The said fund shall be utilized for the promotion of investors, awareness and protection for the investors. सो बेसिकली जो कंपनी का अनपेड डिविडेंड होता है वो कंपनी क्या करती है, एक इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर देती है जब तक वो अमाउंट अनपेड है, जब तक वो अमाउंट पे बैक नहीं करती शेयर होल्डर्स को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑल्सो. मैंने आपको जो आज हमने नया चैप्टर नंबर 11 डिविडेंड प्रोविजन स्टार्ट करा उसका लिंक भी शेयर कर दिया है. So we will continue this chapter number 11. बहुत छोटा सा रह गया, just 5 pages left. We will pick that chapter in the next class and probably chapter number 12 हम next class में start कर लेंगे.
चैप्टर नंबर 12 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन द लास्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें आई विल शेयर ऑल द लिंक्स, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इन द लास्ट क्लास ऑफ योर कंपनी लॉ, आई थिंक विच इज ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को आपकी लास्ट क्लास है, तो उसमें डोंट वरी, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। Thank you so much for your patience and for your time, and we will continue with the chapter number 11, dividend provisions, in the next class. Thank you so much. Have a good day.